Hey guys, we're Ronak and welcome back to another podcast. Today we have Books Amaze aka Avni Sharma with us. She's sharing her journey from corporate life to the booktube life. Don't forget to check the last 10 minutes of this podcast to know about her underrated talent. You like about Avni, like how your journey, कैसे शुरुआत हुई, college life, education life, corporate life, and right now books booktube. So I'm Avni, and my full name is Avni Sharma, and I'm from Indore, Madhya Pradesh. And I have been brought up in Indore, Madhya Pradesh. School, college, everything happened there. And after college, when I graduated, I'm an engineering graduate in computer science. And when I graduated, I got a job in an MNC in Mumbai. So I worked in there in Mumbai for 5 years, almost 5 years, and I was a business intelligence analyst. So my job, roughly, if I say, involved collecting data, then making it into meaningful data, making dashboards and reports out of it, and making trends to help the businesses. So I did that for 5 years. And in between that, parallelly, I fell in love, I got married. And since my husband was working here in the United States, I quit my job and then I came here. So after quitting my job, I started BookTube and I started Books Amaze. And in fact, even during my job, I was, constantly thinking about I need something else. And as we all go through that phase that, this is not what I want, and I don't fit in the 9 to 5 job. So I was also in that phase and I was constantly looking for something else, but I didn't know what. So after quitting my job, actually I stumbled upon this idea of booktubing, and then I started it, and it's been 2 years. Exactly. I mean that's true. Still अगर going on. अगर अगर बहुत सारी बुक्स पहले से पढ़ते हो तो ये 9 to 5 वाला थोड़ा ट्रैप हजम नहीं होता. आई मीन हर किसी के लिए तो वही होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं कि जो उससे बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं. बट लाइक कुछ रीडिंग का पैशन पहले से था, बचपन से था. लाइक हाउ इज इट, लाइक रीडिंग के बारे में, लाइक फ्रॉम बचपन से था, फैमिली जनरेशन में है, या जो सिर्फ तुम्हें आदत लगी? फैमिली में ज्यादा कोई बुक्स नहीं पढ़ता है. पापा काफी बुक्स पढ़ते थे, लेकिन वो भी एक हिंदी ऑथर है, सुरेंद्र मोहन पाठक, नाम सुना हो तो, उन्हीं की बुक्स ज्यादा पढ़ते थे. दादाजी ने काफी बुक्स पढ़ी है, काफी क्लासिक बुक्स पढ़ी है. So he used to talk about Leo Tolstoy and Charles Dickens. He used to talk about that. So पापा और दादाजी को देख के थोड़ा थोड़ा कीड़ा लगा था. But earlier I used to read only comic books and जैसे बाल भास्कर न्यूज़पेपर के साथ जो आती थी, चंपक एंड पंचतंत्र. I started with those, and then I jumped on to some Hindi authors, and actually I started reading avidly after starting BookTube. So I read a variety of books after starting BookTube. Like earlier I used to read only typical type of books. Like I used to read a lot of fiction. I was not into non-fiction that much, but I started non-fiction and other genres after BookTube. So BookTube start करने के बाद मैंने जितनी ज़्यादा books पढ़ी है उतनी मैंने previously नहीं पढ़ी थी. So yeah, BookTube was a very big motivator for me to read different types of books. ओके. बट ये बुकटूब का आइडिया कैसे आया? मतलब अराउंड लाइक 2 years बैक, आई मीन 2016-17 के पास तुमने शुरू किया होगा. उस टाइम हार्डली 3-4 बुकट्यूबर्स थे. लाइक मुझे भी आइडिया नहीं थी कि मैं आगे जाके बुकट्यूबिंग करूंगा, क्योंकि मेरा भी एमएनसी में जॉब था. अराउंड लास्ट ईयर मैंने क्विट किया जॉब, एंड आई वाज कंप्लीटली इनटू द फ्रीलांसिंग प्लस बुक्स पढ़ने की आदत थी, तो ये साइड बाय साइड शुरू किया. एंड उसके बाद मैंने भी लाइक ऑलमोस्ट 1 year हो गया पॉडकास्ट को, और माय मेन फोकस इज ऑलवेज ऑन द पॉडकास्ट. बुकट्यूब के बारे में कभी सोचा नहीं था, बट बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि बुकट्यूब के साथ इंटरव्यू वगैरह. बट जब तुम्हारे पास आइडिया कहाँ से आया लाइक बुकट्यूब का? क्योंकि बहुत सारे तो इंडिया में बुकट्यूबर्स नहीं है, लाइक हार्डली कुछ नाम्स पता है. सो तुम्हारा आइडिया कहाँ से आई और जर्नी कैसे हुई वहां से? Yes. Okay, first of all, congratulations to you, because I checked out your channel and your podcast. You're doing so well, and I'm so happy that a lot of Indian booktubers are coming and our community is growing. So a very big congratulations to you, first of all, for starting this. Now coming to me, as I said, but after I quit my job, I was constantly looking for something that I want to start something, maybe a business or something. YouTube तो दूर दूर तक दिमाग में नहीं था. Business पहले मैंने सोचा कि I should do something. But then I come from a very educational type of family जहाँ पर कोई भी business में नहीं है. तो मुझे लगा कि नहीं, this is not a good idea and I should do something else.
And as I said, I was not in a job and I was supposed to come here to USA, और वीजा का प्रोसेस थोड़ा डिले होता गया, तो I couldn't look for another job also क्योंकि मुझे यहाँ आना था. So there was a lot of uncertainty for me at that time. तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो temporarily हो probably, and then I'll figure it out. So I started reading a lot of books at that time क्योंकि मेरे पास पूरा खाली टाइम था. So I started reading. I started asking for book recommendations from a lot of friends who are already readers. And then one day I thought that I should write something about it. The books that I'm reading, I should write something about it. So I started writing blogs. And then I started writing answers on Quora because I was very heavy on Quora at that time. I used to read a lot of Quora articles. तो मैंने सोचा मैं उधर कुछ लिखती हूँ. मैंने कुछ एक ब्लॉग बनाया, उस पे कुछ पोएम्स लिखी, कुछ आर्टिकल्स लिखे. And then I thought, why not write reviews about books that I'm already reading? So I started writing about them in my diary, in my personal diary. And then one day, this idea of YouTubing came into my mind that I should make some YouTube videos. But then what should I make a video about? Then I kept thinking about it, and then I came to this conclusion that why not make something about books? Why not talk about books? And honestly, at the time, I didn't know that there were some booktubers already there. Honestly, मुझे लगा था कि मैं पहली हूँ जो ये चीज स्टार्ट कर रही है. मुझे उस टाइम जो इंग्लिश बुक ट्यूबर्स थे उनके बारे में भी बिल्कुल कुछ नहीं पता था. मुझे एक जेसी द रीडर का मैंने कुछ एक वीडियो देखा था, और इंडियन बुक ट्यूबर्स का मुझे कुछ नहीं पता था. मैंने खुद एक्सप्लोर भी नहीं किया ज्यादा. Then I talked to my husband and my family members that whether do you think is it a good idea, should I start this? And everybody encouraged me that yes, you should start this. It sounds good, it sounds interesting. So start it and then figure it out. कैसे जाता है. So I made some videos at my home with my phone, with my front camera on. उसको मैंने बहुत बार ही देखा कि मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसी साउंड कर रही हूँ. उसको बहुत बार पॉलिश किया. I still remember मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने 10-15 दिन लिए थे उसको बनाने में. Oh my God. तो बस ऐसे शुरुआत हुई है. धीरे धीरे फिर आई फिगर आउट कि नहीं यार, मेरे अलावा और भी लोग हैं जो ये चीज कर रहे हैं. आई केम अक्रॉस मनप्रीत चैनल, इंडियन बुक ट्यूब, एंड हेली का वीडियो तो मैंने बहुत बाद में देखा. But then yeah, I thought कि ठीक है, कोई लोग हैं ऐसा. Then I reached out to Manpreet, and then I reached out to some other people. I read a lot of blogs about book reviews कि लोग कैसे करते हैं. उनसे बहुत कुछ सीखा. And then by trial and error, I kept doing it. Okay, that's interesting. So like जैसे बात की कि फर्स्ट वीडियो के बारे में, so अभी अगर फर्स्ट वीडियो देखोगे तो कैसे लगता है? अभी तो मुझे बहुत क्रिंजी लगते हैं मेरे पुराने वीडियोस. मैं खुद ही नहीं देख पाती उनको. आई कांट से कि बाकी लोग कैसे उसको झेल पाते हैं, क्योंकि आप जब खुद को कैमरे पे देखते हो ना, आपको बड़ा अजीब लगता है. इवन दो वो बाकी लोगों को अच्छा लगे, मुझे बड़ा अजीब लगता है. इवन नाउ इफ माय हस्बैंड प्लेज अ वीडियो ऑफ माइन, आई गो इनटू अनदर रूम बिकॉज आई कांट वॉच माई सेल्फ. तो मुझे बड़ा क्रिंजी लगता है कभी कभी खुद को देखना, खुद को ऐसे बोलते हुए सुनना. बट या फर्स्ट वीडियो से अभी तक मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया. मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है. नॉट ओनली अबाउट बुक्स तो खैर एक साइड थिंग हो गई है इस चीज की. व्हेन यू मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. It's a whole different skill in altogether. You learn about camera, you learn about video making process, about editing, about how to be confident on camera, and it's a whole different world. So I learned a lot of those things along the way, and I'm getting better, I think. Exactly, I can see that. मतलब ऑलमोस्ट 1-2 साल पहले मैंने वीडियो देखा था, बट उस टाइम इतना मतलब मैं ही नहीं श्योर था कि मैं बुकट्यूब करूंगा या इस बुक्स के बुक्स के यहाँ पे आऊंगा और बुकस्टाग्राम वगैरह शुरू करूंगा. क्योंकि मैंने तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे शुरू किया था, एज ए टाइम पास शुरू किया था, कि कभी सोचा नहीं था कि ये आगे जाके कुछ अच्छा काम करेगा मेरे लिए. बट ऐसे मैंने ट्रायल एंड एरर करके शुरू किया था. बट टॉकिंग अबाउट योर नेम, what's the reason behind books? But still, you have this advantage. Yeah, you still have this advantage कि तुमने बाकी के प्लेटफॉर्म्स पहले एक्सप्लोर किए हुए हैं. So you know a little bit about बुकस्टाग्राम के बारे में आपको पता है, आपको बुक ब्लॉगिंग के बारे में पता है. ऑलरेडी आपने काफी लोगों के बुकट्यूब वीडियोस देख लिए होंगे, and you have your own podcast channel which is so successful. So you know how to go about with a book. So which is, I think, it is a very good advantage. So if you're not, it might be a tip for some people also. Okay, if you're not so comfortable in front of camera, then don't start with a YouTube channel. First of all, start with book blogging or something else, and then move on to YouTubing.
एग्जैक्टली वन सेम कंडीशन थी मेरी, मतलब मैं बहुत कैमरा शाय था, कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा या कैमरा सामने कभी बोलूंगा। सो दैट्स द रीजन कि मैंने सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू किया। एंड सरप्राइजिंगली पॉडकास्ट बनाने वाला Yeah. कोई नहीं था, सो आई गेस वो भी एक एडवांटेज हो सकता है कि अभी तक मैंने लाइक 2-3 ही पॉडकास्ट सुने, बट कुछ ज्यादा उतने मतलब पॉपुलर नहीं कह सकते, बट टॉप 100 पॉडकास्ट इन इंडिया, इसमें तो अभी तक कोई बुक्स के बारे में पॉडकास्ट मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। सो प्रोबेबली दैट्स एक एडवांटेज हो सकता है कि शायद ज्यादा सक्सेसफुल मिली हो। Yes. यस, कि सबसे पहले इंस्टाग्राम शुरू करने से बहुत सारी आइडिया आ गई थी, बट कैमरा शाय होने की वजह से मैंने ऑडियो फॉर्मेट चूज किया। बट मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार वीडियो डाल के देखते हैं यूट्यूब पे क्या होता है। तो ऑब्वियसली पहले अगर मुझे भी अभी अगर मैं जाके पहले वीडियो देखूंगा तो बहुत बुरा Yeah. लगता है मतलब देखने का मन ही नहीं करता। बट एनीवे, बुक्स अमेज रीजन, लाइक व्हाट्स द रीजन बिहाइंड हिज नेम? There's no reason as such. When I started this channel, I wanted to give it a unique name, which is somewhat related to books. क्योंकि मेरे दिमाग में शुरू से था कि I won't go in and diverge into another niche altogether. So my channel will be mostly about books. And then I remember I and my husband sit together and we decided, we were chalking out some names कि कौन सा नाम अच्छा होगा, क्या नाम रखना चाहिए, and every name were around books. So हमने बहुत सारे नेम देखे, फिर हमने देखा कि किसका डोमेन नेम अवेलेबल है, कि बाद में कभी मुझे वेबसाइट बनानी है तो मुझे वो भी चाहिए कि डोमेन नेम अवेलेबल होना चाहिए। सो आई रिमेम्बर हमने 20 से 25 नाम सिलेक्ट किए होंगे, और फिर उसमें से दिस वाज माय हस्बैंड्स आइडिया टू नेम इट बुक्स अमेज, एंड आई इमीडिएटली लाइक्ड इट क्योंकि शॉर्ट सा नेम था, कैची टाइटल था, बुक्स इसमें आ रहा है। सो आई थिंक आई सेड इट्स अ ग्रेट नेम, आई थिंक वी शुड गो अहेड विद इट। सो ऐसे बुक्स अमेज आया। सो उसके बाद कभी लाइक नेम चेंज करने का आइडिया नहीं आया? मतलब मोस्टली अराउंड आइदर खुद के नाम होते हैं या बुक ट्यूबर वगैरह, इसमें कुछ तो इंक्लूड होता है। सो तुम्हें कभी आइडिया नहीं आया कि चेंज करना Yes. चाहिए या वैसे? आइडिया तो आया, बहुत बार आया, क्योंकि मैंने सोचा कि बुक्स अमेज नाम रख दिया तो फिर मैं कुछ ज्यादा नीश एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगी। यदि मुझे कुछ और एक्सपेरिमेंट करने हैं तो मैं ज्यादा उसमें डाइवर्ट नहीं हो सकती हूँ। देन आई थॉट कि मैं अपना नाम रखती हूँ अवनी शर्मा, लेकिन ऑलरेडी यूट्यूब पे अवनी शर्मा नाम से बहुत सारे चैनल्स हैं। मैंने सर्च कर लिया था तो बहुत सारे चैनल्स हैं अवनी शर्मा नाम से, और काफी फेमस भी है कुछ कुछ। तो आई थॉट कि इसमें यूनिक क्या है, बट देन आई थॉट इट डजंट मैटर what does it doesn't matter what's the name of your channel. If you have a successful brand, then people will know you by your name also. Exactly. जब बुक्स अमेज को लोग जाने लग जाएंगे तो मुझे भी जानेंगे, and that's why I say in my introduction of in every video that welcome to Books Amaze, my name is Avni, so that people don't they should know my name also. तो वो ठीक है। अब तो मुझे बहुत सारे लोग नाम से जानते हैं, और जो मुझे डीएम करते हैं या ऐसे कमेंट्स करते हैं, दे स्टार्ट विथ हे अवनी, वी लाइक योर वीडियो एंड सो दे नो माय नेम, सो दैट्स ओके। आई एम नाउ सैटिस्फाइड विथ बुक्स अमेज। राइट। सो लाइक ये क्वेश्चन था कि जब तुमने बुकट्यूब शुरू किया था अराउंड 3-4 महीने पहले की यूट्यूब की पॉलिसी शुरू होने से पहले अराउंड शुरू किया था, राइट? सो कभी डिस्करेज फील नहीं हुआ कि अरे यूट्यूब की पॉलिसीज अब चेंज हो रही है, शायद कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिकॉज बुकट्यूब जर्नी इज नॉट लाइक शॉर्ट टर्म जर्नी कि इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट वायरल हो गया और तुम्हें 5,000-6,000 फॉलोअर्स मिल गए। ऐसा यूट्यूब पे तो हार्डली, मतलब बहुत हार्डली हो सकता है अगर कुछ बड़ी चीज वायरल हो गई तो। और बुक्स तो एक ऐसा नीश है कि बहुत ही अंडररेटेड है, मतलब बहुत कम लोग आके देखते हैं या बहुत कम लोग ऐसी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। सो तुम्हें ये आइडिया कभी नहीं आया लाइक, मतलब बहुत सारे बुक ट्यूबर्स, या अगर मैंने भी जब शुरू किया था, मैंने कॉलेज में पहले फर्स्ट वीडियो डाला था तो एक दो महीने के लिए लगा कि ओके यार कर सकते हैं, लेकिन बाद में कुछ ग्रोथ नहीं दिखती या सक्सेसफुल नहीं दिखता तो डिस्करेज फील होता है। सो व्हाट्स योर थॉट, लाइक तुम्हारी जर्नी कैसी थी उसके बारे में? डिस्करेजमेंट तो डेफिनेटली फील हुआ, क्योंकि एज यू सेड पॉलिसीज चेंज हो गई थी शुरू करने के कुछ टाइम बाद, और 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स। 1000 सब्सक्राइबर तो ठीक है, मैंने सोचा था कि ठीक है ये तो हो जाएगा, बट 4000 वॉच आवर्स उस समय सुन के इतना बड़ा लगा था कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये कैसे होगा? और ऑलरेडी चैनल उतना ग्रो नहीं कर रहा है, ये कैसे होगा? एंड आई डिडंट वांट टू इंडल्ज इन एनी चीप टैक्टिक्स फॉर माय चैनल कि मैं कुछ अजीब से टाइटल डाल दूं या बहुत ही क्लिक बेट चीजें बनाऊं, ऐसा मैं कुछ भी करना नहीं चाहती थी। सो
थोड़े टाइम के लिए डिस्करेजमेंट हुआ, थोड़े टाइम के लिए मैंने वीडियोस बनाना छोड़ भी दिए, थोड़ा ब्रेक भी लिया, सोचा कि क्या है, कैसा जा रहा है चैनल, क्या हो रहा है। बट देन आई थॉट कि थोड़ा सा अप्रोच चेंज करते हैं, एटलीस्ट 1 साल तो मुझे पूरा देना ही चाहिए इस चीज को, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। तो 1 साल के पहले तो ये बंद नहीं करना है, या प्रोबेबली बिफोर 2 इयर्स तो मुझे देखना है कि कैसे जाता है, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी यदि नहीं ठीक हुआ तो। बट देन वंस आई क्रॉस 1000 और आई थिंक 5000 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद बहुत जल्दी ग्रोथ हुई। तो जो पहले के 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में काफी टाइम लगा, 7-8 महीने लगे आई थिंक। उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ हुई। और फिर जैसे आप आगे बढ़ने लगते हो, जैसे आप ज्यादा बुक्स पढ़ते हो या बुक ट्यूबिंग ज्यादा देखते हो, तो आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं। सो मैं एक ही पैटर्न पे स्टिक नहीं करी, मैंने क्लासिक बुक्स पढ़ी, क्लासिक बुक्स की हिंदी समरी बनाई, जो कि मैं तो लिटरेचर स्टूडेंट हूँ भी नहीं, और मैंने प्राइड एंड प्रेजुडिस की हिंदी समरी बनाई, और वो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई थी। वो वीडियो, इफ यू सी दैट वीडियो, आई एम वेरी कैजुअल इन इट, मैं बिल्कुल आराम से सोफे के आगे बैठी हुई बात कर रही हूँ उस वीडियो के बारे में, एंड दैट इज माई टॉप मोस्ट वीडियो ऑफ माई चैनल। उसको 70,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है, और वो वीडियो वायरल हो गया। तो वो मतलब आई कुडंट कम्प्रहेंड कि ये कैसे हो गई। ये तो मतलब मैंने अपने लिए बनाया था कि मैं इसको 5-6 साल बाद देखूंगी तो मुझे प्राइड एंड प्रेजुडिस की स्टोरी याद रहेगी, और उसको इतने ज्यादा लिटरेचर स्टूडेंट्स लोगों ने देखा है, और एंड दे स्टिल थैंक मी टिल डेट की कल हमारी एग्जाम है, हमने ये वीडियो देखा, हमको सब समझ में आ गया। तो इट गेव मी एन आइडिया कि ठीक है, मैं ऐसा कुछ ट्राई करती हूँ, या आई शुड ट्राई मेकिंग वीडियोज इन हिंदी, क्योंकि मैं अभी तक एकदम इंग्लिश में वीडियोस बना रही हूँ। सो आई शुड ट्राई मेकिंग अ मिक्स अप्रोच, मे बी पीपल लाइक इट मोर। और उस तरह से फिर मैंने अपने ऑडियंस देखी कि ऑडियंस की एज रेंज क्या है। सो आई केम अक्रॉस दिस आइडिया दैट मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस आर स्टूडेंट्स, तो उनके हिसाब से मैं कुछ वीडियो बनाऊं, स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाऊं, बिगिनर्स के हिसाब से बनाऊं। सो देन आई एक्सपेरिमेंटेड ऑन दोज लाइन्स, एंड वो सक्सेसफुल हुआ। तो यही है कि 1 साल के पहले कोई भी चीज छोड़ो मत, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, एंड देन यू विल सी योर ग्रोथ। आई गेस तुम्हारे मतलब डाटा एनालिटिक्स का यूज यहाँ पे तुमने अच्छे से किया इसलिए यस, वो चीज काम में आई। एनालिटिक्स मैंने देखना बहुत बाद में शुरू किया एक्चुअली यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब का मुझे बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। बिल्कुल आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, नोबडी वाज देयर टू हेल्प मी, कोई था नहीं इस फील्ड में, और जो कुछ एक लोग थे भी वो अलग मेकअप ट्यूटोरियल्स टाइप के वीडियोस बना रहे थे। सो नोबडी वाज इन बुक ट्यूब। तो ये खुद से ही मैंने सारी चीजें सीखी है। फिर यूट्यूब की एसईओ की टेक्निक सीखी, मार्केटिंग सीखी, बुक रिव्यू के लिए अप्रोच किया लोगों को। तो बहुत सारी चीजें आई हैव लर्न थ्रू टाइम एंड एक्सपेरिमेंटेड ऑन माय ओन। Right, exactly. So as you said, like Hindi और English videos. So what's your take? Like first हिंदी में शुरू करना चाहिए या हिंदी इंग्लिश में शुरू करना चाहिए? Like हिंदी में भी like proper हिंदी, जैसे कि exactly मतलब एक भी इंग्लिश वर्ड नहीं, वैसे भी वीडियोस बनाते हैं, और जो मिक्स है कि जो जैसे सुमित और लाइक मेरे भी हिंदी में होते हैं, बट इट्स काइंड ऑफ मिक्सचर कि लाइक रिव्यू का रिव्यू ही बोलता हूँ, रिव्यू को प्रॉपर हिंदी में तो नहीं बोल सकता था मैं। सो व्हाट्स योर टेक? लाइक अगर कोई बेसिक से शुरू कर रहा है तो उसे हिंदी में करना चाहिए या इंग्लिश में करना चाहिए? लाइक व्हाट्स योर थिंकिंग? I would say start with a language which you're most comfortable speaking in. क्योंकि यदि आप इंग्लिश में वीडियो बना रहे हो और आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, तो जिनको इंग्लिश आती है वो आपकी वीडियो पे डेफिनेटली आपको ट्रोल करेंगे। या फिर आप हिंदी बोल रहे हो और आप एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहे हो, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ बुक विच इज कम्प्लीटली इन इंग्लिश और रिटर्न इन अ फॉरेन लैंड, और उसके बारे में आप शुद्ध हिंदी में बता रहे हो कि ये डीप वर्क है, डीप वर्क को कैल न्यूपोर्ट ने ऐसे से लिखा है, एकदम शुद्ध हिंदी में बता रहे हो, तो बुक पढ़ने वाला तो इंग्लिश में ही बुक पढ़ेगा, राइट? हिंदी में ये बुक है नहीं, इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं है, तो बुक पढ़ने वाला इंग्लिश में ही पढ़ेगा। सो यू आर काइंड ऑफ, आई शुड से, डिसीविंग योर ऑडियंस मे बी। सो मैं ये कहूंगी कि हिंदी और इंग्लिश की मिक्स अप्रोच रखना इज अ गुड आइडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों को इंग्लिश आती है, मे बी दे आर नॉट फ्लुएंट एट स्पीकिंग इंग्लिश, बट दे वेरी वेल अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो यू कैन डू अ मिक्स अप्रोच। और यदि आप शुद्ध हिंदी में बोल रहे हो, so probably pick a book which is already written in Hindi. Like for example, if you are reviewing अर्थला या प्रेमचंद की कोई किताब, तो प्रेमचंद की किताब पढ़ने वाली ऑडियंस ऑलरेडी ऐसी ऑडियंस है जो हिंदी को पसंद करती है, जो हिंदी, शुद्ध हिंदी को पसंद करती है, उसमें बात करना या सुनना पसंद करती है। तो ऐसी किताबों को हिंदी में आप रिव्यू करें, तो उससे आपको वही वाली ऑडियंस मिलेगी, उसी ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करोगे। सो
चूज माइंडफुली अबाउट व्हाट बुक यू आर टॉकिंग अबाउट, और जो अप्रोच का आप शुरू कर रहे हो उसे ही कंटिन्यू रखो। यदि आप हिंदी में वीडियोस बना रहे हो तो हिंदी में बनाते चलो, कंप्लीटली इंग्लिश बना रहे हो तो कंप्लीटली इंग्लिश में बनाते चलो। एंड यू नो देयर आर सो मेनी बुक ट्यूबर्स राइट नाउ हु आर आल्सो मेकिंग वीडियोस इन रीजनल लैंग्वेजेस। कोई यू नो बंगाली में वीडियो बना रहा है, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में वीडियो बना रहे हैं काफी सारे लोग, तो उनके चैनल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो यू कैन ट्राई दैट अप्रोच आल्सो इफ यू नो अ रीजनल लैंग्वेज। यस, बट आई थिंक ये भी एक बात समझनी चाहिए कि लाइक अगर बहुत ही रीजनल जा रहे हो तो निश भी उतनी ही होगी। मतलब आपको पूरी इंडिया की ऑडियंस तो नहीं मिलेगी या पूरी ग्लोब की ऑडियंस तो नहीं मिलेगी। मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस का बार भी उतना ही लगना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम वही होता है कि देखते हैं कि बाकी लोग इतना ग्रो कर रहे हैं या बाकी सारे लोग 10K 100K 200K पे आगे बढ़ रहे हैं। नॉट ओनली अबाउट द बुक ट्यूब बट जो इसके अराउंड निश है कि जो एनिमेटेड बुक समरीज बनाते हैं या सिर्फ और किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो वो तो लाइक 100-200K पे ग्रो कर रहे हैं। बट अगर आप बुक ट्यूब जैसे चूज कर रहे हो तो आई गेस एक्सपेक्टेशंस बार थोड़ा कम ही रखना चाहिए। लाइक व्हाट्स योर थॉट, बिकॉज दैट्स समथिंग आई फील, बिकॉज इट्स प्योरली अ वेरी वेरी स्मॉल निश कि हर कोई बंदा तो बुक पढ़ने नहीं आता। राइट, इवन यू नो आई वुड से कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस में वीडियोस बनाओ और फिर देखो कि आपके कौन से वीडियोस ज्यादा यू नो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैंने श्वेताब गंगवार की जो बुक है द रूडेस्ट बुक एवर, उसका हिंदी में भी वीडियो बनाया, इंग्लिश में भी वीडियो बनाया, लेकिन उसका इंग्लिश वीडियो की अभी तक हार्डली 3,000 ऑडियंस है, 3,000 व्यूज मिले हैं उसको। लेकिन जो उसका हिंदी में मैंने वीडियो बनाया है उसकी 11,000 से ऊपर है। Right. So clearly there is a vast difference where my audience comes from, and I have seen a lot of views on my videos which are in Hindi or a mixed language of Hindi and English. तो मेरे लिए वो अप्रोच काम करती है। मैंने इंग्लिश में भी वीडियोस बनाए, कुछ वीडियोस इंग्लिश में चलते हैं लेकिन वो वीडियोस ज्यादा चलते हैं जो फेमस बुक्स के हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 रूल्स ऑफ लव, तो 40 रूल्स ऑफ लव के बारे में हर किसी को पता है कि हाँ भाई ये कोई बुक है, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। या रूपी कौर की बुक है मिल्क एंड हनी, या मैं कल को कोई चेतन भगत की बुक का रिव्यू बनाती हूँ उसके बारे में, तो ऑलरेडी जो लोग जानते हैं दे वोंट माइंड कि ठीक है इंग्लिश में बोल रहा है बोलने दो। पर बहुत ही ऐसी बुक्स हैं जो बिल्कुल मैंने पढ़ी है, बहुत सिलेक्टेड ऑडियंस ने पढ़ी है, सो योर वीडियो इन इंग्लिश माइट नॉट वर्क। सो या कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड सी, अपने एनालिटिक्स देखो कि ऑडियंस कैसी चीजों को पसंद करे, कौन से वीडियोस पे व्यूज शूट अप हो रहे हैं, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट अप्रोच। Exactly. Even in my podcast, the Rudest to Book Cover is the only one which I crossed around only within a 1 week around 25,000 listeners. Like I was like shocked कि इतने views कहाँ से आए पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि उस पर भी मैंने पॉडकास्ट बनाया था जिसके बारे में बुक के बारे में डिस्कस की थी। इवन मैंने श्वेता को भी अप्रोच किया था टू बी ऑन द पॉडकास्ट जब वो मुंबई आ रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द सम वर्क वो थोड़ा डिले हो गया। प्रोबेबली उसके नेक्स्ट बुक के साथ शायद हम पॉडकास्ट करेंगे। सो व्हाट्स योर प्रोसेस ऑफ रिव्यू? लाइक right now there are so many booktubers, obviously there is no right or no legit process to review a book. हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है, हर किसी को कोई कैरेक्टर पसंद आएगा कोई नहीं पसंद आएगा, बट व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ हाउ you think that book should be reviewed? Okay, so my review process has been my review process was very different when I started booktubing and now after 2 years, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही लिमिटेड थिंकिंग के साथ सोचती थी। अब मैं अपनी ऑडियंस के हिसाब से भी सोचती हूँ कि ओके मेरी ऑडियंस में मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस आर बिगिनर रीडर्स एंड दे आर स्टूडेंट्स, तो उनको कैसी बुक पढ़ना पसंद आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश उतने अच्छे से फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, तो उनको क्या ये बुक पसंद आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई रीड अ बुक, मैं उसमें ये देखती हूँ कि एक तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। यू नो देयर आर सम बुक्स व्हिच हैव नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल लेस बाय एंड्रू शॉन ग्रियर, इट हैज अ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर व्हिच इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू रीड एंड डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। वो होता है, फिर लीनियर स्ट्रक्चर होता है, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाती है, थर्ड पर्सन नरेशन आ जाता है। तो मैं ये चीज देखती हूँ, ये खुद के लिए देखती हूँ एक्चुअली, ये उतना यू नो ऑडियंस के लिए नहीं है, वो शायद इस चीज को समझ ना पाए, बट ये एक मेरी खुद की थॉट प्रोसेस के हिसाब से ये देखती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि कोई बिगिनर रीडर है, यदि वो इस बुक को उठाएगा तो क्या उसके लिए पढ़ना इजी है। देन कम्स द पेस ऑफ द बुक, कितनी जल्दी हम इसको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डैन ब्राउन की बुक्स है,
वो है तो इतनी मोटी, बड़ी, लेकिन दे आर right. सो पेसी कि आप उसको 2 दिन में खत्म कर सकते हो। इतनी मोटी Right. बुक को आप 2 दिन में खत्म कर सकते हो। तो पेस कम्स इनटू हैंड मैटर आल्सो, बिकॉज बिगिनर रीडर्स को ऐसी बुक चाहिए जो जल्दी जल्दी वो खत्म कर सके। देन आई लुक फॉर राइटिंग स्टाइल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको राइटिंग स्टाइल अच्छी चाहिए, अच्छे Yes. वर्ड्स चाहिए, यू नो मीडियोक्रिटी नहीं उनको पसंद है, तो वो चीज मैं देखती हूँ। एंड देन आई ऑल्सो राइट थिंग्स अबाउट हु विल लाइक दिस बुक एंड हु विल नॉट लाइक दिस बुक और प्रोबेबली वांट टू पास ऑन दिस बुक। तो वो चीज भी मैं देखती हूँ कि आप यदि इस बैकग्राउंड से हो तो आपको ये बुक पसंद आएगी, यदि आपने ऐसी बहुत सारी अलग किताबें पढ़ी तो आपको ये पसंद शायद ना आए। सो आई फैक्टर इन अ लॉट ऑफ पीपल जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, और उसके हिसाब से मैं अपना रिव्यू चार्ट आउट करती हूँ। So yeah, that's one thing. And I have also been an active part of Toastmasters, which is an international organization about public speaking. Okay. So school time में, college time में भी मैं debate में बहुत ज़्यादा active थी. I used to take part in a lot of debate and extempore speakings, things like that. So Toastmasters एक organization थी जहाँ पर हम लोग के weekly sessions होते थे, and then we had to give speeches. And then there was a person who would give speech, prepared speech, impromptu speech, and then there was also an evaluator who would evaluate the person who has just given the speech. So I was also an evaluator, और वहां पर मैंने ये skill सीखी थी कि जब भी आप किसी को evaluate करते हो, so you use a sandwich method. So sandwich method में क्या होता है कि आप पहले कुछ अच्छा बोल दो, और फिर जो भी आपको पसंद नहीं आया या you thought that this could have been better वो बोल दो, और फिर लास्ट में कंक्लूड करके कुछ अच्छा बोल दो। सो ये बहुत अच्छी स्किल थी जो मैंने वहां से सीखी। इसको भी मैं अपने रिव्यूज में यूज करती हूँ कि मुझे कोई बहुत सारी बुक्स होती है जो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बट देन यू नो देयर माइट बी सम पीपल हु लव दैट बुक, और फिर उनको बुरा नहीं लगना चाहिए कि यार ऐसे कैसे इसने बोल दिया, मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी थी। तो वो लोग वापस आएंगे नहीं मेरे चैनल पे, मुझे मालूम है यदि मैंने एक बार उस बुक की बुराई कर दी तो। सो मैं वो भी ध्यान रखती हूँ कि हर तरह की ऑडियंस को मैं केटर करके चलूं, और एक सैंडविच मेथड यूज करो, और ये बहुत अच्छी मेथड है इवन इफ यू आर राइटिंग योर रिव्यूज ऑन ब्लॉग और गुडरीड्स, तो ये बहुत अच्छी रिव्यू की मेथड है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस मेथड को यूज करूँ while I'm making videos. Right. I mean that's true. Even I learned this sandwich method in college days कि जब इंटरव्यू वगैरह चल रहा था तो उस टाइम मतलब जब कॉलेज का कैंपस वगैरह आता है तो उस टाइम ये ग्रुप डिस्कशन के वगैरह उस टाइम ये बातें सिखाई थी। But anyways, like you started this journey, like as you said that from like I want to know the pros and cons of the book. Rather than I will frame this question, how do you see as a Avni Sharma before BookTube and after BookTube? ओके, सो बुकट्यूब के कारण मैं कहूंगी कि जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिकेम मोर आर्टिकुलेट, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा डाइग्रेस कर जाती थी किसी टॉपिक के बारे में बात करने से। अब मुझे मालूम है कि मुझे वीडियो बनाना है, मुझे 4 या 5 मिनट में उसको संक्षिप्त में बात करनी है उसके बारे में, और सबको केटर करे इस तरह से मुझे बात करनी है। सो पहले जब मैंने शुरुआत की थी बुकट्यूब की, आई यूज्ड टू राइट my script and cram it and then say it on camera, but then I thought it's too much work, I can't do it. और जैसे जैसे आप करते जाते हो you become more polished in the whole process. तो अब मैं सिर्फ पॉइंट्स जॉट डाउन करके रख लेती हूँ, या कई बार तो वो भी नहीं करती हूँ, I say spontaneously. तो वो बहुत मुझे हेल्प किया कि मैं आर्टिकुलेट हुई अपनी स्पीच में, कि मैं जो बोलना है कंसाइज मैनर में बोल सकूं, फास्ट बोल सकूं। एंड देन मेरी राइटिंग काफी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि आई ऑल्सो राइट द रिव्यूज on lot of platforms, on Goodreads, Amazon, my blog, Instagram. तो writing काफी सुधर जाती है आपकी कोई भी चीज लिखने की। And then I learned a lot of creative skills YouTube से ही, SEO marketing related बहुत सारी चीजें। तो even if a new YouTuber comes up to me which doesn't have a BookTube channel also, कोई दूसरा ही YouTube channel है, उसको भी मैं बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ with my learnings. उसको मैं बता सकती हूँ कि भाई तुम्हें ये चीज नहीं करनी है, ये करनी है, इससे तुम ग्रो करोगे, ये करो, अपना एनालिटिक्स कैसे देखना है, कैसे उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। तो ये पूरी डिफरेंट स्किल है जो मैंने लर्न करी है। सो दीज आर ऑल द प्रोस आई वुड से। कॉन्स, सबसे बड़ा कॉन यही है कि व्हेन यू हैव अ बुकट्यूब चैनल, इट्स नो मोर योर हॉबी, इट्स योर जॉब, business kind of. It might happen that you lose interest in reading altogether,
बिकॉज पहले जब आप बिना बुक ट्यूब की किताबें पढ़ते थे, इट वाज अ लीजर एक्टिविटी फॉर यू, इट वाज अ हॉबी, आप आराम से चिल होकर अपनी किताब पढ़ते थे. नाउ यू हैव अ जॉब टू फुलफिल. बहुत सारे जैसे हम लोग तो पेड रिव्यूज भी लेते हैं, यू नो, न्यू ऑथर के जो बुक्स आते हैं, तो उसमें यू हैव अ डेडलाइन, you have a deadline to put out videos and to write reviews. True, true. कोई constant pressure भी होता है कि नहीं यार 25 तारीख तक कुछ बुक पढ़ के उसका रिव्यू करना है. इवन नॉट विद पेड रिव्यूज, आपका नॉर्मल भी चैनल है तो भी यू हैव अ प्रेशर ऑन योरसेल्फ कि यार एक महीने में 6 वीडियोस डालने हैं, 10 वीडियो डालने हैं. लाइक आई हैव अ प्रैक्टिस कि मुझे एक वीक में 2 वीडियोस तो डालने हैं. तो Okay. वो कभी कभी एंशियस भी कर देता है आपको कि यू नो Exactly. आज मेरे पास वीडियो नहीं है, इस वीक के लिए मेरे पास वीडियो नहीं है, मुझे वीडियो बनाना है, किताब पढ़नी है. तो वो एक जो लेजर एक्टिविटी होती थी रीडिंग, वो शायद कहीं ना कहीं छूट जाती है. बट देन यू हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ इट. और बाकी तो जो नॉर्मल यूट्यूब के कॉन्स होते हैं, ट्रोलिंग एंड यू नो यू हैव टू कीप अप विद इट, कंसिस्टेंसी, वो सब है. एग्जैक्टली, हम उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर सकते. बट हाँ, उसके हिसाब से मुझे क्वेश्चन याद आ गया. लाइक ऑलमोस्ट 2 years हो गए, सो फैन मूवमेंट कब था कि तब तुम्हें रियलाइज हुआ कि ओके, अवनीशा इज क्वाइट लिटिल बिट फेमस, सॉरी, अवनी शर्मा इज क्वाइट लिटिल बिट फेमस? फैन मोमेंट आई से जब मुझे लोगों के कमेंट्स आने चालू हुए इंस्टाग्राम पे पर्सनली, जब लोगों ने डीएम किया. एक बार मुझे याद है पहले किसी ने बोला आई एम योर बिगेस्ट फैन, तो मुझे थोड़ा सा यू नो आई वाज टेकन अबैक कि फैन, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि फैन हो गए लोग. बट देन दोस काइंड ऑफ कमेंट्स केप्ट कमिंग. यूट्यूब पर भी काफी कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी काफी कमेंट आते हैं. बट देन आई ट्राई टू रीच आउट टू देम, I talk to them, I make sure that I reply to each and every person on my Instagram or on YouTube, क्योंकि engagement is the key. Engagement तो आपको करना ही है YouTube पर, not because you want your channel to be successful, but because you know you want to build a community of Exactly. readers. And most of the people जो मुझे reply करते हैं, they are already readers or maybe they are trying to become avid readers. So this is the Right. community that you are building, right? So fan या ऐसे moment के लिए you should not yearn for them. You should yearn for building a community, making friends. So yes, but I think after I crossed 10,000 subscribers, तब मुझे थोड़ा सा लगा था कि हाँ, this is going good, this is going well, and maybe I can continue this. तो आगे अच्छा future है इसमें. Yes, exactly. I mean, I'm not against, like, obviously community building is really, really important because वही एक चीज है कि जहाँ पे आप एक्चुअल में ग्रो कर सकते हो या दूसरे को ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकते हो. बट इसके साथ जैसे कि प्रोज एंड कोज आते हैं, तो वैसे भी फैन मूवमेंट भी हर किसी के लाइफ में आता है. अगर आप खुद को ऑनलाइन रखते हो तो, अगर आप कंप्लीटली ऑफलाइन हो जैसे कि ब्लॉग्स वगैरह है, तो शायद उतना नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे ना फेस दिखाई देता है, जस्ट राइटिंग, क्योंकि वहां पे टोन समझ में नहीं आती, या जो जैसे हम आप बोल रहे हैं, तो एक्चुअली वो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, तो वैसे ब्लॉग में या रिटन आर्टिकल्स में नहीं होता. सो डू यू थिंक every blogger, every written blogger should try booktubing because they should transition from blogging to the booktuber? What do you think? Like, I believe that they should transition from like, if अगर एक प्लेटफॉर्म बिल्डअप हो गया है तो एटलीस्ट दूसरा और तीसरा प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाहिए. सो व्हाट्स योर टेक? Yes, try डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि बुक ट्यूबिंग अभी काफी जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है. स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन काफी लोग बुक्स पढ़ रहे हैं और काफी लोग उन बुक्स के रिव्यूज जानना चाहते हैं. तो बुक ट्यूबिंग की कम्युनिटी या इवन यूट्यूब इन जनरल इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ. तो बुक ट्यूबिंग आपको करनी चाहिए इफ यू आर पैशनेट अबाउट बुक्स, इफ यू हैव यू नो अ पर्सनैलिटी दैट यू कैन सेल आउट ऑन यूट्यूब, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब पे. इफ यू आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बहुत सारे लोग यू नो मुझे कमेंट करते हैं या दे वॉच माय वीडियोस और दे लाइक माय वीडियोस नॉट ओनली बिकॉज आई टॉक अबाउट बुक्स, बट द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ और द वे आई टॉक अबाउट बुक्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप एक मोनोटोनस टोन में यदि बोलते जाओगे तो यू नो यू विल नॉट ब्रिंग योर पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो if you think that you have a personality, if you are you know not camera conscious, or you can look lively on camera, then you should definitely try it. Yes, exactly. I mean, even that's why reason मुझे पता नहीं कि मतलब ये
बुकट्यूब कब तक करूंगा, क्योंकि आई हैव अ डे जॉब, आई हैव फ्रीलांसिंग वर्क, सो लाइक अभी तो सिर्फ 22 इयर्स का हो, सो नो आइडिया कि कब तक ये बुकट्यूब, मतलब बुकट्यूब स्पेसिफिकली कब तक शुरू करूंगा. But let's see, let's hope for the best. Yeah. So do you think, like before lockdown, do you think that booktube is quite underrated? Like, I believe that it's quite underrated as compared to the other niche, like lifestyle niche, travel niche, vlog niche, as compared to this. So what's your take? Like, what do you think about it? It definitely is underrated. उतने लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, और इंडिया में लोग बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी रखते हैं. तो यदि आपने किसी चीज को कोई बुक उनको बहुत पसंद है, उनके लिए वो लाइफ चेंजिंग बुक है, और आपने उसके बारे में थोड़ा भी नेगेटिव बोल दिया, तो दे विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग एनीथिंग एंड बिफोर बैशिंग यू फ्रॉम लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. तो वो चीज बहुत ज्यादा इंडियन कम्युनिटी में मुझे देखने मिलती है. यही चीज आप यदि कोई अमेरिकन बुक ट्यूबर्स के चैनल देखोगे ना, मैं उनके भी बहुत सारे अमेरिकन बुक ट्यूबर्स है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, और उनके जब मैं कमेंट्स देखती हूँ, they are so big as a community, they are so welcoming as a community. Hardly मुझे कोई उस पे नेगेटिव कमेंट दिखता है. even if someone is criticizing them, वो इतना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है कि आप उससे कुछ सीख सकते हो. तो आप there's a vast difference when you see comments underneath an Indian booktuber and an American booktuber. So definitely it is challenging in India as a country, but what's easy, कोई भी YouTube चैनल होगा उस पे भी ट्रोलिंग तो होती है, but I think it's a part and parcel of the YouTube journey, and yes, it is underrated, but I'm happy that a lot of booktubers are coming in together and they are making videos on YouTube. और बुकस्टाग्राम जो कम्युनिटी है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज्यादा बुकस्टाग्राम कम्युनिटी है. सो डेफिनेटली वहां से भी थोड़ी थोड़ी ऑडियंस यूट्यूब पर आएगी, तो ये कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ेगी. सो आई थिंक फ्यूचर इज गुड, बट यस, you'll have to be a little cautious about it. Yeah, exactly. Even I think that. और इसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा है. True. So the biggest part is like Bookstagram मैंने पहले शुरू किया था, so Bookstagram is quite grown. Like मेरे लिए तो बहुत अच्छा चल रहा था वो, but most of the people come and ask like, how do you get paperbacks? How do you get hardcover? How much do you make from the reading books? So most people see the money part of this book, like they don't see the other part, other struggles that being available, constantly putting content, Yes. reading books, they don't see. So is it happen with you that people asking you for all these things, and just clarify this thing about all the people and all the community, that what's exactly it is about the money part or the business side of the booktubing or the Bookstagram? Obviously we are not going to talk about numbers, but in general what's Oh, yes, yes. there? Yes, definitely a lot of people ask me. बहुत से लोग तो बिल्कुल ब्लेटेंटली इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके बोल देते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं कि कितने पैसे कमाती हो इससे एक महीने में, या फिर कोई मैंने बुक का रिव्यू किया है तो आज ही, इनफैक्ट मैंने आज ही देखा कि श्वेता गंगवार की जो बुक का मैंने रिव्यू किया उसके नीचे किसने कमेंट किया, कितने पैसे लिए कितने पैसे लिए. तो दे डोंट थिंक अबाउट कि भाई बंदी ने मेहनत करी है, किताब पढ़ी है, फिर उसका बनाया है रिव्यू, फिर शूट किया है, एडिट किया है, वो सब किसी को नहीं दिखता. बस किसी बुक के बारे में अच्छा बोल दिया तो सीधे कितने पैसे लिए. बट यस, बिजनेस पार्ट ऑफ इट इज इम्पोर्टेंट. अल्टीमेटली यू विल हैव टू थिंक ऑफ योर प्रोडक्ट एज अ बिजनेस इफ यू सी इट ग्रोइंग. बट उस मोटिव के हिसाब से आपको चैनल शुरू नहीं करना चाहिए. मैंने भी ये सोच के चैनल शुरू नहीं किया था कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं, वो तो दूर दूर तक मेरे दिमाग में थॉट नहीं था. Once I started becoming good at it, तब मैंने सोचा कि हाँ, this is something which I can turn it into a business. पर मैं यही बोलूंगी कि शुरुआत करने के लिए आप मनी का मोटिव इसमें मत रखो. आप बुकट्यूब चैनल तभी शुरुआत करो if you have a passion for reading. If you don't have passion for reading, या आपने बस 5-6 किताबें पढ़ी और आप सोच रहे हो कि मैं कोई भी बुक उठा के उसकी समरी बना के डाल दूंगा और वीडियो चल जाएगा, तो वो नहीं होगा. स्पेशली इफ यू वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो वो दिख जाता है कि इसमें बुक पढ़ने के लिए पैशन है या ये सिर्फ बिजनेस पर्पस से चैनल शुरू कर. वो दिख जाता है, कैमरे पे छुपता नहीं है कुछ भी. Exactly. तो बिजनेस का एस्पेक्ट बहुत बाद में आता है. बट यस, देयर आर गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर बुक ट्यूबिंग मॉनेटरी वाइज ऑल्सो if you become good at it. Exactly. मतलब
लेकिन यही है कि जैसे कि लोग I देखते हैं. यस, प्लीज कंटिन्यू. no, you please go ahead. सो लाइक हाँ, लाइक बाकी जैसे देखते हैं कि आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, जैसे कि अदर नीश है जैसे ट्रैवल लाइफस्टाइल, तो उनको लगता है कि बुक ट्यूब में इतने सारे पैसे, अगर इतने सारे पैसे होते तो सारे हार्ड कवर्स हमारे घर पे होते एक्चुअली में. बट वैसा कुछ नहीं है. कि लोगों को ये समझना चाहिए कि इट जस्ट कि बुक Right. ट्यूब आगे कंटिन्यू करना है और कुछ अच्छे वीडियोस बनाने हैं, इसलिए थोड़ा बहुत अर्निंग ठीक है, बट वी डोंट मेक दैट मच कि पूरा एक घर खरीद सके. Right. Definitely उतना तो नहीं है. और even though you get offers, even though you get a lot of promotion or book review offers, you'll not choose each and every book that you will be offered. क्योंकि आपका अपना खुद का भी एक रीडिंग टेस्ट है. मुझे आज जिस स्टेज पे मैं हूँ, मुझे एक महीने में कम से कम 10 ऑफर्स तो मिनिमम आते हैं. 10 से 15 ऑफर्स मुझे आते हैं बुक रिव्यू के. बट आई डोंट एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स आई डोंट लाइक देयर प्लॉट. रिव्यूज तो खैर मैं बहुत बाद में पढ़ती हूँ. मैं पहले उसका प्लॉट पढ़ती हूँ कि मुझे ये खुद एज अ रीडर ये बुक इंटरेस्ट करती है या नहीं, या मेरी ऑडियंस को ये पसंद आएगी या नहीं. दोनों चीजें आई फैक्टर इन. एंड आई टर्न डाउन मोस्ट ऑफ द ऑफर्स, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना है वो बुक, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बुक में. सो आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि मैं कैसे उनको पोलाइटली मना करूं. लेकिन यू नो, it's I value my time a lot. I have a lot of things to do in my life, in my day, and I don't want to waste my time in reading a book that I don't like and then talking about it and then editing the video. It's a full lengthy process. So जितनी books मैं accept करूँगी, मुझे उतने I'll get the money, and in exchange of that I'll have to post a good, I'll have to provide a good service also, ताकि और लोग उस चीज को देखें और फिर मेरे पास आए. सो और इस चीज में ब्रांड्स भी उतने ज्यादा नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा ब्रांड डील्स आपके पास आएंगी. हार्डली कुछ आता है, जैसे कि पब्लिशिंग हाउसेस के कुछ ऑफर्स आ जाएंगे, या कोई स्टेशनरी का प्रोडक्ट है उसकी ब्रांड डील आ जाएगी. सो वो भी बहुत कम है. बट यस, यू कैन डू समथिंग बेस्ड ऑन द स्किल्स दैट यू हैव कलेक्टेड फॉर यूट्यूब की जो आपने चीजें सीखी है, मार्केटिंग, एसईओ, उसको आप यूज करके कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर सकते हो. And you can help budding YouTubers. तो वो एक चीज है जो आप इससे एक अलग बिजनेस बना सकते हो. Exactly, even that I believe that because YouTube से पहले वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी थी. मतलब मेरा मेन वीडियो एडिटिंग मुझे पहले से बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सिर्फ ट्राई किया YouTube करने के लिए. सो एंड आई डू वीडियो एडिटिंग फॉर लॉट ऑफ अदर पीपल. सो माय एडवाइस इज फॉर ऑल द पीपल इज सेम, दैट सिर्फ YouTube के बारे में मत सोचो कि YouTube पे जो सारे स्किल्स है वो सारी डिफरेंट कैटेगरी में यूज करो, तभी ग्रो होने का अल्टीमेट, आई मीन खुद को ग्रो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी जैसे कि डील्स के बारे में बोला, तो कम्युनिटी के ऑडियंस के बारे में भी सोचना पड़ता है कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा. हर बुक प्रमोट करोगे तो इट्स अ काइंड ऑफ नॉट अ गुड चैनल, ऐसा भी शायद हो सकता है आगे जाके. तो वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है. बट एज अ टिप्स फॉर अ न्यूबी, लाइक एज अ सेड कि लॉकडाउन में बहुत सारे न्यू बुक ट्यूबर्स आए, इंक्लूडिंग मी, कि जो मैंने अभी बुक ट्यूबिंग शुरू किया है. सो व्हाट्स योर टिप्स फॉर ऑल द न्यू बुक ट्यूबर्स who are starting right now from the zero? Okay, first of all I would say ज्यादा सोचो मत, कूद जाओ इसमें, स्टार्ट मेकिंग अ वीडियो. और एक और टिप जो मैं दूंगी वो ये है कि जो गलती मैंने करी थी, कि बिफोर मेकिंग योर यूट्यूब चैनल ट्राई एंड मेक एटलीस्ट 5 to 10 वीडियोस बिफोर हैंड, और वो रखो अपने पास 5 से 10 वीडियोस बनाकर. और ताकि जब आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लोगे तो यू विल हैव अ सेट ऑफ वीडियोस जो आप कॉन्स्टेंटली चर्न आउट कर सकते हो. क्योंकि जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया, उसके बाद मैं बैठ गई, मैं देख रही हूँ कि क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या हो रहा है. फिर मैंने बहुत टाइम के बाद, शायद 1-8 महीने के बाद दूसरा वीडियो बनाया. तो यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा खेल है. और यू विल हैव टू पोस्ट कंसिस्टेंटली, चाहे आप 10 दिन में एक वीडियो डाल रहे हो, लेकिन वो 10th डे पे आना चाहिए. तो पहले यदि आपके पास कुछ वीडियोस बने पड़े हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, ताकि आप उस समय स्टक ना हो जाओ. क्योंकि जब आप नया शुरुआत करते हो, आपके पास उतने आइडियाज नहीं आते हैं, यू डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट. तो पहले से कुछ वीडियोस बना के रखो, उसको फिर यू कैन अपलोड देम.
and side by side also keep learning about YouTube tips and trips, how to be presentable on camera. For example, मुझे याद है कि जब मैं नया चैनल शुरू किया था और मैं देख रही थी कि how to be presentable on camera, तो मैंने एक चीज ये देखी थी कि जब आप कैमरे पे बात करते हो, you shouldn't blink your eyes a lot. फॉर एग्जाम्पल मैं कैमरे में देख रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके बात कर रही हूँ, तो जो व्यूअर है वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है. एंड उस समय मैंने सोचा था कि इज इट ट्रू, एंड देन आई वॉच सम ऑफ द वीडियोज वेयर पीपल वर ब्लिंकिंग अ लॉट, क्योंकि नॉर्मल आदत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे ब्लिंक करते हैं, एंड इट डिड मेक मी फील अनकंफर्टेबल. तो मैंने फिर अपने वीडियोस देखे, मैंने देखा कि क्या मैं भी ये ज्यादा करती हूँ, स्पेशली व्हेन यू आर नर्वस, तो ये हो जाता है, कई बार हो जाता है. तो वो चीज मैंने सीखी. एक चीज मैंने सीखी कि जैसे जब आप बात कर रहे हो, यू शुड लुक इनटू द कैमरा. हम बहुत बार अपनी ही इमेज को देख के बात करते हैं फ्रंट कैमरा में, हम खुद ही को देखते हैं, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं क्या. तो लुक इनटू द कैमरा, फाइंड कि आपका कैमरा कहाँ पे है फोन में. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैंने सीखी. फिर वॉइस का मैंने सीखा कि अच्छा माइक ले लो, माइक को अपने पास रखो, किस तरह से बात करें, एडिटिंग कैसे क्रिस्प करना है, जंप कट्स पे कैसे खेलना है, वो चीज सीखी. उसके बाद एसईओ की चीजें सीखी कि टाइटल कैसे डालना है, थंबनेल कैसे डालना है, एंड देन क्या कीवर्ड्स यूज करने हैं. सो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई लर्न. तो आपको ओपन रहना पड़ेगा. इफ यू आर स्टार्टिंग अ बुकट्यूब चैनल, यू शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट जस्ट बुक्स एंड रिव्यूइंग बुक्स, यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो यदि आप पहले से ये थोड़ा सब चीजें आपको मालूम हो, थोड़ा बहुत भी, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. जैसे मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मैंने ये सब चीजें बाद में सीखी. So it affected my consistency. It affected my consistency of uploading videos. Right. Yeah, but engineering की अभी तो skills बहुत होती सारे है. बुकट्यूब चैनल है, तो या अभी तो इतने सारे बुकट्यूब चैनल है, तो लोग देख सकते हैं. So I think they should watch a few videos before starting their own channel. राइट. एंड एक्चुअली उनके पहले वीडियोस भी देखो, ताकि आपको पता चलेगा कि हर कोई प्रो नहीं होता स्टार्टिंग में, बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है. क्योंकि अगर लेटेस्ट सबके वीडियोस देखेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत एडिटिंग अच्छी है, बहुत कैमरा सही है, तो ये सारी चीजें अब भी होगी. अगर स्टार्टिंग के वीडियोस हर किसी भी यूट्यूबर के जाके देखोगे तो बहुत क्रिंज होंगे या बहुत रॉ होंगे. तो वो वीडियोस पहले देखना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि एटलीस्ट कैन स्टार्ट. नहीं तो प्रो वीडियोस देख के तो लाइक अरे यार मुझे एडिटिंग ही नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, बहुत सारी चीजें आएगी. So what do you think about the future of booktubing? Like, also watch a lot of yes. I was saying also watch a lot of videos of your contemporaries. कि कोई दूसरा इंडियन बुकट्यूबर है जो आपके आसपास है इन नंबर्स या आपसे ऊपर भी है, उसके टॉप वीडियोस देखो कि उसके सबसे टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस कौन से हैं. उस लाइन पे यू कैन मेक सम वीडियोस कि उसने कुछ 10 बुक्स फॉर स्टूडेंट्स का वीडियो बनाया, तो वैसे ही आप भी कुछ बना सकते हो क्या, उससे रिलेटेड कुछ बना सकते हो क्या. उसको बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, लेकिन थोड़ा उससे रिलेटेड बना सकते हो. क्योंकि इंडियन बुकट्यूबर्स इतने कम है कि जो आपका वीडियो देख रहा है वो किसी दूसरे इंडियन बुकट्यूबर का भी वीडियो देखेगा. तो आपको वहां से भी ऑडियंस खींचनी है. So you will have to think about that. थोड़ी सी ये टेक्टिक्स सीखनी चाहिए कि उसका टॉप वीडियो देखो, उसका टॉप वीडियो देखो, क्या वीडियो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप वीडियो बनाओ. So ये भी एक चीज है. Exactly, that's true. But there is a difference between copy and inspiration. Always take inspiration, do not try to copy. That's my golden advice to everyone. वरना एक बार पता चल गया तो फिर ऐसे ups down होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. Yes. So what's your think about, like, I don't want to keep it a long video. Already I guess around 40 minutes हो गए. But what do you think about the future of booktubing and what's your plan for the futures? I think future of booktubing is it's really good. काफी booktubers आ रहे हैं और इंडिया में authors बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. इंडिया में बहुत से लोग बुक्स लिख रहे हैं और उन्हें ये पता चल रहा है कि बुकट्यूबिंग जैसी भी कोई चीज होती है, एक बुकट्यूबिंग की कम्युनिटी है जो काफी फेमस है. तो ऑथर्स भी बुकट्यूबर्स को अप्रोच कर रहे हैं. पिछले आई थिंक 8 से 10 महीनों में मैंने बहुत ज्यादा ऑथर्स ने मुझे अप्रोच किया है, बहुत ज्यादा, जो पहले उतना नहीं था. और ये इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द अमाउंट ऑफ बुकट्यूबर्स दैट आर कमिंग फॉरवर्ड एंड मेकिंग वीडियोस. सो आई वुड से कि फ्यूचर तो काफी अच्छा है. But then you'll have to draw a line somewhere also. Like nowadays I'm thinking कि अब मैं ज्यादा
न्यू बुक्स के रिव्यूज नहीं कर लूंगी, क्योंकि फिर मेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं बचता है कि मुझे कुछ बुक्स पढ़नी है, तो मेरे पास वो एक प्रेशर रहता है कि मुझे इसकी बुक पढ़ के रिव्यू करना है, और वो मुझे शुरुआत में ज्यादा जरूरत थी while I was growing. Now I am at a pretty decent stage, so I can focus on individual books that I want to read and make a list of recommendation videos and all of that. तो अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि I should take a back seat and I should prioritize the books that I am reading. So yeah, you can decide for yourself. The future of BookTube is quite good. And I would say, don't put all your eggs in one basket. Try different platforms also. YouTube पे हो तो Bookstagram पे भी जाओ, Twitter पे जाओ, या फिर Facebook पे you can make a group or something like that. So try and create content on different platforms also. जैसे मैं Instagram पे उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन अभी मैं थोड़ी एक्टिव ज्यादा हो रही हूँ Instagram पे, तो वहां से भी मैं अपनी ऑडियंस इधर ला रही हूँ. So yeah. Exactly. True. You can try on different platforms. What's about future of Booksummits? Like, what's your plan for the next 5-10 years? Like, what you are thinking? like, जैसे कि अभी group Booksummits के future में, as I said, yeah, I started a book club जिसमें अभी उतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं इकट्ठा हो पा रही है. एंड इवन आई एम थिंकिंग कि कैसे करूँ, फेसबुक पर कोई ग्रुप बनाऊं या क्या करूँ. आई ऑल्सो हैव प्लान्स टू गो बैक टू माई वर्क स्पेस. जो जॉब मैंने छोड़ दी थी और जो थोड़ा सा गैप हो गया है, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गो बैक टू माई वर्क प्लेस. आई हैव डन सम सर्टिफिकेशंस रिसेंटली, सो वो भी मैं चाहती हूँ कि आई कंटिन्यू माई जॉब. तो शायद थोड़ा सा बुक ट्यूबिंग उसके पैरेलल चले. अभी मेरा ज्यादा फोकस जॉब पर है, तो वो है. लेकिन आई हैव प्लान्स ऑफ डूइंग दिस यूट्यूब फ्रीलांसिंग थिंग, क्योंकि मुझे बहुत सारे बुक ट्यूबर्स और स्मॉल यूट्यूबर्स जो हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो लोग मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, पूछते हैं कि हमें टिप्स दो. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दीज डेज, एंड बहुत लोगों की मैं हेल्प करती हूँ, बट मैं आई कांट हेल्प देम एज लॉन्ग एज आई सिट विद देम, आई टॉक टू देम एंड आई नो देम एज अ पर्सन. क्योंकि आप जेनेरिक चीजें कुछ बता सकते हो, जैसे मैंने इस वीडियो में बता दी, बट एज लॉन्ग एज आई नो यू, योर बैकग्राउंड, योर पर्सनैलिटी, आई कांट हेल्प यू. तो व्हाई नॉट make some money out of it when you're good at it, so I am also thinking of doing something along those lines and helping people, and I am thinking of sitting on a call with them just like we are having a call, and then looking out at their YouTube channel or whatever their questions are. So ये एक चीज है जो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं. So I might go along with this. Exactly, you should. I mean, most of the small people, I don't call them small people, but most of the beginner booktubers need help because आइडिया नहीं होती कि जब कोई स्टार्ट करता है. तो लाइक मैंने भी ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट वीडियो लास्ट ईयर कॉलेज में था, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके मार्केटिंग में जंप की. ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, बट आई नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मार्केटिंग, सो आई नो हाउ टू ग्रो दिस थिंग्स. बट दिस डेफिनेटली बिगिनर्स को डेफिनेटली हेल्प चाहिए. लाइक मुझे अगर ये सारी चीजें कोई 2 साल पहले बताता तो बहुत अच्छा होता. बट यस, डू बिगिनर्स नीड हेल्प एंड डेफिनेटली थिंक ऑन इट, क्या एक्चुअली कर सकते हैं और क्या क्या चीजें और आगे बढ़ा सकते हैं. And when you yeah, I was saying, when you pay someone to know these things, maybe in a one-to-one call, तो तब आप ज्यादा चीजें सीखते हो. स्पेशली किसी की गलतियों से आप ज्यादा सीखते हो. वो आपको कहेगा कि मैंने ये गलतियां करी, मैंने ये चीज नहीं ठीक से करी. और when you are paying that person, तो उस सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो they will give you undivided attention. Right. तो उसमें I think it's a very good idea कि आप, even I would want someone to do that for me. यदि कोई आता है और बोलता है कि ठीक है, मैं I'm providing my services, I'm helping you out in growing your YouTube channel or your BookTube channel for that matter, and we can sit on a one-on-one call and I'll talk to you, I'll look at everything, I'll look at your YouTube channel and I can pinpoint कि ये गलती कर रहे हो, यहाँ आप बेहतर कर सकते हो. I'd pay that person. ठीक है, कि बहुत अच्छी चीज है ये मुझे जो मिल रही है. ऐसे कोई नहीं करता है कि one-on-one call हो, ऐसे कोई आपको सब बातें बता दे. So I'll definitely start with a very small amount or probably for free, and then I'll go along with it कि कैसे जाता है. But yes, I think it's a good idea, and I would definitely pay someone to know all of that gyan. True that. You should definitely try this.
Even I would love to announce that you are starting something like this on my Instagram, because my major audience is Instagram and the podcast. So probably I will do that. So to the last, I would love to ask you one of the funny questions that I ask in every other podcast. Tell us something that nobody knows about you. Okay. Interesting. Okay, yeah, I have one thing. I have a useless talent that I can sing songs in reverse. Oh my कोई भी God. हिंदी का सॉन्ग होगा उसको मैं One उल्टा song, गा one सकती song, हूँ. one song. I have this useless talent. कोई भी बोल दो, बस जिसमें थोड़े इंग्लिश वर्ड्स ना हो जो हिंदी में ही हो. मुझे तो याद नहीं आ रहा. कोई भी song, like whatever you would love to. कोई भी, you can give me any song. नहीं तो फिर लगेगा कि मैंने प्रैक्टिस करी है. नहीं, अब I completely believe on you, so you can do anything, because उतने हिंदी पुराने songs तो याद नहीं आएंगे मुझे, इसलिए. Okay. वो जो गाना है पल 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 हर Yes, पल yes. हर पल. Okay, I can sing that in reverse. Okay. बहुत साल हो गए यार ये चीज. Okay. लप 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 रह लप सेके गाटेगा लप रह लप 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 रह लप सेके गाटेगा लप रह लप लदी 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 मिला चिमा है लच 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 लच. Oh my God, that's Yeah, I can do that. one of I the used to best do this a talent I lot in ever school. come across. It's not useless. But it's a useless talent. I can't do anything about it. It can be one of the real video, and it can go definitely viral. Yeah, it's a useless talent. My friends used to come up to me and line लग जाती थी कि अब मेरा request, and then I used to entertain them with this useless talent. Like, But yeah, मतलब ये बहुत talent सालों के कैसे बाद हुआ? आज मैंने गाया. Like, कैसे build up a talent, or it's just like born talented? I don't know यार, ये I am a single child, so most of my life I didn't have a lot of friends also back then in my school. तो मैं ज्यादा किताबें ही पढ़ती थी, अकेले में बैठी रहती थी, कुछ ना कुछ. I used to daydream a lot. And one fine day while I was daydreaming, ऐसे ये thought आया, और फिर मैंने कोई तो भी ऐसे गाना लिया और उसको सोचा कि एक ऐसे मैं कर सकती हूँ क्या उल्टा पुल्टा. तो ऐसे में बहुत सारी फालतू की चीजें करती रहती. तो मैंने उसको ऐसा उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करी, और वो हो गया मुझसे, आराम से हो गया, एकदम से हो गया, और बहुत फास्टली हो गया. मे बी माई कॉन्सेंट्रेशन वॉज वेरी वेल एट दैट टाइम. तो वो बहुत जल्दी हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, आपको एकदम फोकस से वो सोचना पड़ता है एक लिरिक्स. Exactly. और फिर मैं गई, मैंने मेरे मम्मी पापा को बताया कि देखो मैं ऐसे उल्टा गाना गा सकती हूँ. तो उन्होंने बोला अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है. फिर स्कूल में ऐसे होता था ना कि हर सैटरडे को ऐसे होता था कि आओ कुछ करो, फ्री पीरियड है तो उसमें कुछ तो एक्टिविटी होती थी. तो तब वहां पे मैंने ऐसे एक दिन गा दिया, तो सब लोग ऐसे बड़े आश्चर्य करे. तो मैंने कहा यार ऐसे इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है. देन आई थॉट कि नहीं यार, ये थोड़ा सा यूनिक है, ये हर कोई नहीं कर सकता है. Exactly. तो मतलब फिर मुझे पता है कि कैश जब ऑन कर दिया, और क्या. यस, मुझे पता है कि जब मैं लाइक कर्नाटक में था तो वहाँ पे रफ नाम की एक लैंग्वेज है, अगर पता हो कि नहीं, बट वो मुझे सीखने के लिए सेम था कि बहुत लोगों को सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता था. इट जस्ट वही सेम रैंडम वर्ड से, लेकिन उसमें आप कौन सी लैंग्वेज? रफ करके है कि जो बनाई लैंग्वेज है. जरफे से मेरे पे बोर को Okay. धार पाओ, जो अभी मैंने बोला, तो एक्चुअली ये बहुत लोगों को सीखने के लिए उस टाइम टाइम लगा था. तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत अच्छे से सीखी थी, बट वो भी यूजलेस लैंग्वेज है. हाँ, लेकिन कर्नाटक में बहुत यूज होती है. Yeah. अगर आपको कन्नड़ नहीं आती तो वो Even I did this with one of my friends. Yeah, I did this with one of my friend कि जब हमको कोई कोड लैंग्वेज में बात करनी होती थी ना, कि हम पास में कोई बैठा है उसकी बुराई कर रहे हैं, उसको पता ना चले, तो हम हर शब्द के आगे च लगा के बात करते थे. तू अच्छा. चकिया चका चर 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 चही चहे. तो ऐसे हम च लगा के बात करते थे. तो शायद आई थिंक यहाँ से भी वो चीज आई होगी. तो Right. सिर्फ वो और मैं समझ पाते थे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कोई तीसरा नहीं समझ पाता. तो ये हमारी अपनी लैंग्वेज थी जो हमने बना ली थी कि हर शब्द के आगे च लगा के बात करेंगे. तो ऐसे कोई भी शब्द लगा के बात, ऐसे बहुत उल्टे पुल्टे काम मैंने किए. तो ये शायद ये यूजलेस टैलेंट वहीं से आ गया है. Exactly. But yeah, is do increase to help your concentration. अगर कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो तो ये चीजें डेफिनेटली हेल्प करती है लाइफ में. But anyways,
I am learning French these days. Oh, that's awesome. Actually, easy language है. उसका नाम क्या है? एस्पेरांतो, I guess. एस्पेरांतो जो एक लैंग्वेज, वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेनिश, फ्रानिश, 4-5 लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है. अगर वो लैंग्वेज सीख लोगे तो एटलीस्ट 5 कंट्री में तो तुम आराम से सरवाइव कर सकते हो. तो आई गेस वो एस्पेरांतो है, तो वो लैंग्वेज That's सीखना good. बहुत ईजी है. I उसमें know about it. बहुत मतलब बहुत वाइड. Esperanto. हाँ, एस्पेरांतो आई गेस. नहीं तो मैं डीएम कर दूंगा, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. मैंने वो सीखना शुरू की थी ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले. इजी है, बट वो लैंग्वेज आती है तो एटलीस्ट आप स्पेन, फ्रेंच, बहुत सारी 3-4 जगह पे आप सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि सेम वर्ड्स है उस दोनों लैंग्वेज में. कैन थिंक अबाउट इट. But anyway, Okay. thank you so much for taking time and being on the show and guiding us with a lot of Thank knowledge you. you I love have. talking to you. Exactly. And probably we'll do some podcast maybe 1 or 2 months after about talking about the book, like specifically any non-fiction book or any fiction book, like kind of a debate or kind of a summary कि जहाँ पे एक बुक के बारे में like पूरा Definitely. उसका क्या जो है उसमें उसकी सारी बात कर सकते हैं. So probably we'll do that someday. जैसे कि अगर कोई कॉमन बुक सामने आती है. Yes. Yes, I have a question for you. Okay. What are you reading these days? Which book are you reading these days? नॉन फिक्शन एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन माय ओन बिजनेस, सो इसलिए अभी तो फिक्शन में अगर एंट्री कर दी तो अगर सीरीज में एंट्री कर दे तो प्रॉब्लम हो जाता है कि फिनिश करने में बिना प्रॉब्लम हो जाता है. तो इसलिए नॉन फिक्शन पे अभी है द गुड वाइफ गुड Yes. लाइफ. देन सेकंड वन इज डीप वर्क, जो कि अभी तुमने दिखाया. देन 4 Hour Work is अभी ये 2-3 है कि जो अभी I'm also. जो अभी लिस्ट में है बुक्स. I've heard a lot of good things about this. या डीप वर्क इज लाइक पढ़ी है मैंने, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है. बट आई वांट यू टू गो डीप इनटू डीप वर्क. सो मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा. बट यस, प्रोबेबली नॉन फिक्शन बुक्स, और Yes. कोई पब्लिशर रिक्वेस्ट करता है तो वही एक दो बुक्स. अदरवाइज मोस्टली नॉन फिक्शन बुक्स अभी चल रही है, क्योंकि बिजनेस अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फैमिली बिजनेस बस खुद का बिजनेस, तो उसके लिए तो अभी उस पर फोकस है. दैट्स व्हाई वही अभी. Yeah. Okay.